Magnetic field due to a infinite long current carrying a wire. Okay, we want to find out the magnetic field at a point due to the current carrying infinite long wire. Okay, for this we have to consider a straight wire that will represented by the xy is just a section of the wire. Okay, wire is at infinite long wire. Okay, we have to consider a section of this wire which is represented by x and y only. Okay, तो यहाँ पर हमारे पास लेट कर लेते हैं, लेट I is the amount of the electric current flowing through the wire in the vertical upward direction. Now we have to consider a point P at a distance A. We have to consider a point P at a distance A from the wire, which is represented like that. Now we have to consider a small current element. We have to consider a small current element of length dl. यहाँ पे जो हम लोगों ने करंट एलिमेंट का जो ये लेंथ लिया हुआ है, ये जो सेक्शन डार्कर हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिस इज द dl एलिमेंट, दिस इज द dl एलिमेंट. ओके, एट अ डिस्टेंस l, at a distance l from the point Q of the wire. Okay, this is the point Q on the wire, and we have to consider a small current element dl at a distance Q, at a distance l from the point Q on the wire. Okay, and at a distance r, and at a distance r from the point P, let it be point O, and at a distance r from the point P, which is represented like that. Okay, now this angle will be 90 degree, this angle will be 90 degree. Okay, and this angle will be phi, हम लोग लेट कर लेते हैं, this angle will be phi and this angle will be theta. ये हमारी यहाँ पर अजम्पशंस आ जाती हैं बेटा. ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू द बायोट-सैवर्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू बायोट-सैवर्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू बायोट-सैवर्ट लॉ, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट IDL, ड्यू टू द IDL करंट एलिमेंट at point P is बायोट-सैवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास रिजल्ट आ जाता है dB इज इक्वल टू म्यू नोट IDL साइन थीटा डिवाइड बाय 4 पाई r स्क्वायर. ओके, ये हमारे पास करंट एलिमेंट आ जाएगा. I करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द करंट एलिमेंट एंड लेंथ, और ये साइन थीटा. साइन थीटा इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड द लाइन joining the point P and the conductor, this way theta. Okay, now this is the magnetic field, small amount of the magnetic field due to this current element dl. Okay, now we want to find the magnetic field due to this straight conductor which is infinite long. Okay, now we get the total magnetic field by integrating this equation up to the dl में हमारा इंटीग्रेशन आया हुआ. अगर मैं यहाँ पे टोटल लेंथ लिख देता हूँ वायर का, तो मुझको यहाँ पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा. बट वायर इज़ इन्फिनाइट लॉन्ग, हमको नहीं पता है वायर का जो एक्चुअल लेंथ है वो कितना गिवन है बेटा. सो वी कांट इंटीग्रेट दिस इक्वेशन अलोंग द लेंथ ऑफ द वायर. ओके, नाउ हाउ वी फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस वायर. Okay, for this we have to assume that the end of the conductor make the angle with a point P. Okay, with the point P, let the x end of the conductor make an angle with the point P. ठीक है, यहाँ पर ये एंगल मैं लेट कर लेता हूँ कि मेरे पास आ रहा है बेटा 5, it will be 5. Okay, similarly second end means y end of the wire make an angle
with the line QP, let it be phi 2. Okay. Now if we integrate the length, if we integrate this equation between the angle phi by taking the limit phi 1 to phi 2, then the whole length of the wire will be covered and we get the total magnetic field. अगर मैं इस इक्वेशन को phi 1 एंगल से लेकर phi 2 एंगल तक इंटीग्रेट कर देता हूँ तो मेरा ये टोटल जो लेंथ है वायर का मैंने अज्यूम किया हुआ है इट विल बी कवर्ड. ओके, बट आवर इंटीग्रेशन इज इन द लेंथ, नॉट इन द phi. हमारे पास इक्वेशन में जो इंटीग्रेशन आई हुई है वो dl के अंदर आया हुआ है, स्मॉल लेंथ एलिमेंट है. बट यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो ये फाई की फॉर्म में हम लोग को इंटीग्रेट करना पड़ेगा. तो इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम लोगों को चेंजेस यहाँ पर करने पड़ेंगे. ठीक है, वो चेंजेस किस तरीके से हैं, जो ये इक्वेशन आया हुआ है टोटल इक्वेशन, इस टोटल इक्वेशन को मुझको फाई की फॉर्म में यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा. ठीक है, तो इसको हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं बेटा, यहाँ पर वो चीज़ हम लोगों को समझनी है. ठीक है, अब यहाँ पर आ जाता है, अगर मैं ट्रायंगल की बात करता हूँ, इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ क्यू पी, ओ क्यू पी, वी गेट थीटा प्लस फाई. थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री. थीटा प्लस फाई is equal to 90 degree. That is theta is equal to 90 minus phi. This will be the value of theta. Theta is equal to 90 minus phi. So we can take the value of sin theta. ठीक है, sin theta को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, sin 90 minus phi. ओके, साइन थीटा मैंने लिया हुआ है और थीटा की वैल्यू यहाँ पर मुझको ये मिल रही है, तो मैं साइन थीटा के प्लेस पर 90 माइनस फाई यहाँ पर लिख सकता हूँ और ये मेरा बन जाएगा बेटा कोस फाई. मीन्स साइन थीटा इज इक्वल टू कोस फाई. ओके, ये इक्वेशन 1 मैं लेट करता हूँ, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2. ओके, साइन की वैल्यू आ चुकी है मेरे पास, साइन थीटा इज इक्वल टू कोस फाई. ओके, नाउ अगेन वी यूज़ दिस ट्रायंगल, यही ट्रायंगल मुझको यूज़ करना है यहाँ पर. ठीक है, अगर मैं यही ट्रायंगल यूज़ करता हूँ तो मुझको क्या रिज़ल्ट यहाँ से लेना है, मुझको अब यहाँ से DL निकालना है. DL के लिए क्या इक्वेशन बनती है मेरे पास, ठीक है, वो मैं सोल्व करने की कोशिश यहाँ पर करता हूँ. ठीक है, ये आ गया मेरे पास. यहाँ से अगर मैं यही सेम ट्रायंगल यूज़ करता हूँ इन ट्रायंगल ओ क्यू पी, ठीक है, L ओवर ए, मेरे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज द बेस, दिस इज द परपेंडिकुलर एंड दिस विल बी द हाइपोटेनियस. फाई वाला ट्रायंगल मैं यूज़ कर रहा हूँ. ठीक है बेटा, तो मेरे पास यहाँ पर बन जाता है 10 फाई आ जाएगा, बिकॉज दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस, दिस विल बिकम 10 फाई. ओके, यहाँ से L की वैल्यू निकाल लो बेटा. L इज इक्वल टू A 10 फाई. नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, देन वी गेट DL इज इक्वल टू A 10 फाई को यहाँ पर रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है, तो 10 फाई के लिए हमारे पास आ जाएगा, डेरिवेटिव आ जाएगा सेकेंड फाई इंटू डी फाई. ओके, मेरे पास जो DL की वैल्यू आ चुकी है वो फाई की फॉर्म में यहाँ पर आ चुकी है बेटा. एक इक्वेशन मेरे पास ये बन जाती है, दे लेट इट विल बी द इक्वेशन नंबर 3. ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ R की वैल्यू भी मुझको फाई की फॉर्म में निकाल लेनी है. ठीक है, क्योंकि मेरे पास R भी चाहिएगा मुझको. अब यही सेम ट्रायंगल मैं दोबारा से यूज़ करूँगा इन ट्रायंगल ओ क्यू पी, ये आ जाता है. अब मुझको यहाँ से R निकालना है. ठीक है, R के लिए इन टर्म ऑफ A एंड फाई, तो यहाँ पर मेरे पास बन जाएगा बेटा A ओवर R. A मीन्स बेस, R मीन्स हाइपोटेनियस, बेस ओवर हाइपोटेनियस इज कोस फाई. सो R इज इक्वल टू A बाय कोस फाई, ये रिजल्ट बन जाता है बेटा. ठीक है, और यहाँ से अगर मैं कोस फाई को चेंज करना चाहता हूँ तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा बेटा A इंटू
secant phi. It will be equation number 4. Okay, in this way we get equation number 2, which is sin theta, which give the sin theta in term of phi, and equation number 3 which give the dl in term of phi, and equation number 4 which give r in term of phi. ये जो सभी इक्वेशंस थी हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशंस में जो भी वेरिएबल्स यूज़ हो रहे थे हमारे पास dl, sin phi और r, ये सभी चीज़ें मैंने क्या कर लिया, फाई की फॉर्म में इन सबको चेंज कर दिया है। तो मैं यहाँ पर फाई की वैल्यूज़ को लिख सकता हूँ बेटा। तो इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास क्या बन जाएगा बेटा, डी बी इज इक्वल टू म्यू नोट आई। ओके, डी एल के लिए मैं इक्वेशन नंबर 3 यूज़ करता हूँ। डी एल मेरा कितना आ जाएगा यहाँ पे, ए सीकेंट स्क्वायर फाई डी फाई। ओके, साइन थीटा कितना आया हुआ है हमारे पास, साइन थीटा इज इक्वल टू कोस फाई, ये यूज़ हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, डिवाइड बाय 4 पाई और आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू मैं यहाँ से ये यूज़ वाली करूँगा, आर इक्वेशन नंबर 4। तो ये बन जाएगा मेरे पास ए सीकेंट फाई होल स्क्वायर, ये रिजल्ट आ जाएगा। अब इस इक्वेशन को सोल्व कर लेना है, यहाँ से बन जाएगा डी बी इज इक्वल टू म्यू नोट आई ए सीकेंट स्क्वायर फाई कोस फाई डी फाई, देन 4 पाई ए स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर फाई, ये रिजल्ट आ जाता है बेटा। सीकेंट स्क्वायर फाई से सीकेंट स्क्वायर फाई, ए फाई, एक वन ए से एक ए कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, और मुझको यहाँ पर इक्वेशन मिलता है डी बी इज इक्वल टू म्यू नोट आई कोस फाई इंटू डी फाई डिवाइड बाई 4 पाई ए। We get this result. Okay, now our whole equation will convert in term of the phi. So we integrate this equation between the limits phi 1 to phi 2 and we get the total magnetic field. Okay, तो यहाँ पर हमारे पास अब आ जाता है फाई की हम लोग बात करते हैं। इस इक्वेशन को मुझको phi 1 से लेके phi 2 तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा बेटा। ठीक है, when we make the angle phi 2, then we move in the clockwise direction. Okay, and when we make the phi 1 angle, then we move in the anti-clockwise direction. जब phi 2 एंगल हम लोग बनाते हैं तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और जब phi 1 बनाते हैं then we move in the anti-clockwise direction. So one angle will be taken as positive and one will be taken as negative. If we consider the clockwise direction positive, then anti-clockwise direction is considered as negative. So integrate this equation, we get the total magnetic field, which is given as इक्वेशन नंबर 1 में सभी वैल्यूज को पुट करने के बाद हम लोगों को ये वाला इक्वेशन मिल जाता है। नाउ टू गेट द टोटल मैग्नेटिक फील्ड, इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन, इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन between limits minus phi 1 to phi 2, we get यहाँ पर b आ जाएगा हमारे पास, b इज इक्वल टू डी बी। ओके, डी बी के लिए हमारे पास जो इंटीग्रेशन आएगा वो phi 1 से लेके phi 2 आ रहा है। यहाँ पर माइनस इसलिए यूज़ किया गया है बेटा, बिकॉज बोथ द एंगल मेक इन द डिफरेंट डायरेक्शन में हम लोगों ने यूज़ किए हुए हैं, तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर डी बी की वैल्यू पुट कर सकते हैं, माइनस phi 1 to phi 2 म्यू नोट आई कोस फाई डी फाई डिवाइड बाई 4 पाई ए। अब यहाँ पर जो भी टर्म्स कॉन्स्टेंट्स हैं उनको हम लोग इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पर तो बाहर आ जाएगा म्यू नोट आई ओवर 4 पाई ए, एंड इन द इंटीग्रेशन वी गेट कोस फाई डी फाई। नाउ इंटीग्रेट दिस इक्वेशन। Okay, now integrating this equation, then we get the integration of the cos phi which is equal to sin, यहाँ पर आ जाता है हमारे पास sin phi। cos phi का जो इंटीग्रेशन होगा इट विल बी sin phi थीटा 2, और लिमिट आ जाएगी माइनस थीटा 1 से थीटा 2। नाउ पुट द वैल्यूज, अपर लिमिट माइनस लोअर वैल्यू लिमिट, देन वी गेट म्यू नोट आई 4 पाई ए, वैल्यूज पुट करते हैं, sin phi माइनस
sine of minus phi. And you all know that sine minus phi is equal to minus sine phi. ये रिजल्ट बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो अपर लिमिट phi 2 और ये लोअर लिमिट है phi 1. देन वी गेट म्यू नॉट आई 4 पाई साइन phi 2 माइनस, ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारे पास, और रिजल्ट बन जाएगा phi 1 ये वाला. b इज इक्वल टू म्यू नोट आई ओवर 4 पाई ए साइन phi 2 प्लस साइन phi 1, ठीक है. दिस इज द टोटल मैग्नेटिक स्पेशल केसेस. इफ वी एक्सटेंड द वायर अप टू द infinite, then the angle phi 1 and phi 2 will become 90 degree. So this result will become mu naught I over 4 pi a and sin 90 plus sin 90, which is equal to mu naught I over 4 pi a, and it will become 2. Okay, so this result will become mu naught I over 2 pi a. This is the magnetic field due to a infinite long wire. Okay, infinite long wire फर्स्ट केस आ जाता है, फिर सेकंड आ जाता है फॉर सेमी इन्फिनाइट वायर, ठीक है. सेमी इन्फिनाइट लॉन्ग वायर है हमारे पास. सेमी इन्फिनाइट के लिए जैसे मेरे पास ये वायर आ जाती है, इसमें जो ये पॉइंट पी हमारा बना हुआ है, ठीक है. इस तरीके से हम लोग ये वाला डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड किया हुआ है. अपवर्ड वाला पोर्शन हमारे पास नहीं है, तो phi 2 हमारा बन जाएगा यहाँ पर 0, और phi 1 को हम लोग कंसीडर करेंगे यहाँ पर 90 डिग्री. ओके, सो दिस रिजल्ट विल बिकम b इज इक्वल टू म्यू नोट आई ओवर 4 पाई a. यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 0. तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए रिजल्ट आ जाता है बेटा mu naught I over 4 pi a. This is for the semi infinite long wire, and this is the infinite long wire extended on both the sides. These are the two special cases, and on the basis of these results we also solve the numerical problems.